Good evening, students. In yesterday's lecture, we have done this topic of major goals of HRD, right? And we have done over here, the last one was to increase in productivity. Today, we will do the next topic, and that is benefit of human resource development. So here we shall talk about that how the human resource development in general is going to affect the many aspects. There are 5 points into it, so we will discuss one by one. So human resource is the most important and vital factor of economic development, or it can be said that humans are the agent of development. Agent of development means that through human beings only development is possible. There is no other. The financial resources by themselves cannot develop, the raw materials cannot develop, any other resources, whether natural resource or other, they are all non-living beings. So any development, if at all it has to take place, it has to take place through the human beings. So if human beings are developed, naturally the overall economic development will take place. So human resource, from human resource development point of view, it has been emphasized over here that human resources are the most important factor for the economic development of the country. So some of the important human resource और ह्यूमन कैपिटल इज एज फॉलोज. ठीक है, इंपॉर्टेंस में सबसे पहले है कंट्री डेवलप्स विद द ह्यूमन रिसोर्सेज इज डेवलप. मानव, हिंदी में बोलते हैं बच्चों मानव संसाधन. ह्यूमन रिसोर्स इज कॉल्ड एज मानव संसाधन, एंड देयर इज अ होल मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री, विच इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स, in which education also comes, everything comes. So development is possible through education, through training people. So if the country needs to be developed, it's human resources, or in Hindi as we call it, Manav Sansadhan Vikas, Manav Sansadhan Vikas, human resource development. So this development of the country will only come if the human resources or the people of this country are developed in skills, ability and knowledge, right? To enhance economic development, the state constructs roads, building, bridges, dam, power, house, hospital, etc. To run these units, doctors, engineers, scientists, teachers are required. So if the state invests in a human resource, it pays dividend in response. कहने का मतलब यह है कि बच्चों, जो डेवलपमेंट होता है, अब रोड बनेगी, सड़कें बनेगी, उसके पीछे कौन आएंगे? आर्टिशियंस आएंगे, टेक्नीशियंस आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे. ठीक है, कोई भी अगर हॉस्पिटल्स बनेंगे या कोई भी सोशल सर्विसेज की चीजें, जैसे हॉस्पिटल्स का एग्जाम्पल है, तो किन की जरूरत है? हमें हेल्थ वर्कर्स की जरूरत है, हमें डॉक्टर्स की जरूरत है. ठीक है, उसी तरह नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए वहां भी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टीचर्स, रिसर्चर्स, इन लोगों की जरूरत है. कहने का मतलब है कि अगर लोगों का डेवलपमेंट प्रॉपरली होगा ह्यूमन रिसोर्सेज, तो कंट्री भी डेवलप होगी. आप किसी भी डेवलप कंट्रीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं. इफ यू टॉक ऑफ अमेरिका, वाई अमेरिका इज नंबर 1 कंट्री? बिकॉज देयर ह्यूमन रिसोर्सेज आर डेवलप्ड. यानी कि उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनमें स्किल है, उनमें एबिलिटी है, उनमें नॉलेज है टू क्रिएट न्यू थिंग्स, to assist in developing the society, to assist in developing new technologies, to assist in developing the overall structure of the country, जिससे कि पूरी कंट्री की तरक्की पॉसिबल है. So this is the main point you have understood, I think. Next is increasing productivity. The better education, this is not better, this is better, BETTER. Improved skill and provision of healthy atmosphere will result in proper and most efficient यूज ऑफ रिसोर्सेज विच विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन. देखिए, इंसान की प्रोडक्टिविटी उसकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है. सो अगर उनका एजुकेशन बेटर होगा तो नेचुरली उनकी स्किल्स बेटर होंगी. प्रोविजंस ऑफ हेल्दी एटमॉस्फेयर, यानी कि जहां लोग सहयोग करते हैं, जहां लोग हाथ बटाते हैं, विकास के लिए हाथ बटाते हैं, डेवलपमेंट के लिए हाथ बटाते हैं. ठीक है, और एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, बल्कि उसका एफिशिएंट प्रॉपर यूसेज हो, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन पॉसिबल है. क्योंकि वेस्टेज हमारे यहां बहुत होता है, उसकी भी रोकथाम होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो नॉन नेचुरल रिसोर्स हो. नॉन नेचुरल में जो मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, केमिकल्स हैं, मटीरियल्स हैं, मेटल्स हैं, ये सारे नॉन नेचुरल हैं. नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर हो गया, एयर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आता है. तो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे नॉन नेचुरल रिसोर्सेज, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है अगर हम एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं और इकोनॉमिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं. क्योंकि
आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, रिसोर्सेस कभी अनलिमिटेड नहीं होते, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। इसीलिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है, इसीलिए हम ये जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ये क्यों है, क्योंकि अगर हमारे पास अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो हमें कुछ प्लान करने की जरूरत ही नहीं हो, क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट ऐसा है नहीं, चूंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हमें उनका एफिशिएंट यूज करना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। इराडिकेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड, सो लोगों को अगर डेवलप करेंगे एचआरडी से, तो एचआरडी हैज अ एम्पल इफेक्ट ऑन बैकवर्डनेस, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। भाई लोगों को हमें एजुकेट करना है, नॉलेजेबल बनाना है, उनको रोजगार देना है, उनको आगे बढ़ाना है सोसाइटी में, तो बैकवर्ड इकोनॉमी को आगे लेके जाके डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो नेचुरली उस बैकवर्डनेस को हटाने के लिए हमें एजुकेशन, स्किल, एफिशिएंसी सब बढ़ानी पड़ेगी लोगों की, जो सिटीजन है ऑफ द नेशन है। द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन विल इंक्रीज लिटरेसी, ठीक है, विच विल प्रोड्यूस स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑब्वियसली एजुकेशन ही सबसे बेसिक होता है। देखिए 3 एस्पेक्ट्स हैं जो सबसे बेसिक होते हैं किसी सरकार के लिए, शिक्षा, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 बेसिक डेवलपमेंट की चीजें होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर दो, लोगों को हेल्थ दो और लोगों को एजुकेशन दो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी होती है। तो यह कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ एजुकेशन विल इंक्रीज लिटरेसी ऑब्वियसली एंड विल प्रोड्यूस स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। Similarly, provision of health facility will result in healthy human resources, which will contribute to the national economic development. There is a statistics के बहुत लोग तरह तरह की बीमारियों से आज ग्रस्त हो रहे हैं, ठीक है, तो हेल्दी ह्यूमन रिसोर्सेज होना भी जरूरी है विद अ हेल्दी एटीट्यूड, तभी वो अच्छा कंट्रीब्यूशन अपनी लेबर का या अपने वर्क का कंट्रीब्यूशन अच्छा दे पाएंगे। बीमार आदमी किसी भी काम का नहीं होता सोसाइटी के लिए और न ही कंट्री के लिए, ठीक है। सो लोगों को डेवलप करना फिजिकली मेंटली बहुत जरूरी है, जिससे कि इराडिकेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को खत्म किया जा सके। यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसको हमें निपटने के लिए मानव संसाधन विकास, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाए। देन एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्रीज एजुकेशन, क्लीन एनवायरमेंट, गुड हेल्थ, investment on the human resources will all have its positive effect. Job opportunities would be created in the country, and even if business environment will flourish in the state, which creates many job opportunities. देखिए आज कितनी सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, हर जगह या कोई दूसरा राज्य भी है, बेसिकली ये कुछ बेसिक चीजों की बात कर रही है। एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज, यानी कि लोग अलग अलग उद्योगों में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, वो तभी पॉसिबल है जब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप से मतलब स्मॉल स्केल यूनिट, मीडियम स्केल यूनिट, लार्ज स्केल यूनिट, ये चीजें जितनी सोसाइटी में बढ़ेंगी लोगों को उतना रोजगार मिलेगा। जितनी फैक्ट्रीज, जितनी कंपनीज नई नई खुलेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी ही मिलेगी। मानव संसाधन विकास का मतलब एक ये वाला पॉइंट भी है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनको क्लीन एनवायरनमेंट दे, उनको गुड हेल्थ दे। लोगों को अगर डेवलप करना है तो इन्वेस्ट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको बेहतर मेंटेन करने के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन सब का एक मिला जुला असर जो होगा वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अगर आप इन चीजों को देखें बच्चों, ये सारी चीजें डेवलप कंट्रीज में अच्छी तरह से मिलती है। एजुकेशन मिलता है, क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है, गुड हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है और लोगों के विकास के लिए इन्वेस्टमेंट करती है सरकार, ठीक है। और इन सारी चीजों का एक मिला जुला पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिससे कि कंट्री के ऊपर असर पड़ता है। आप किसी डेवलप कंट्री को हमारी कंट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे उनमें वो चीज ऑलरेडी आ चुकी है और हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती है, प्रोसीजर्स बनाती है, जिससे कि ये चीजें आ सके, सो दैट दीज थिंग्स आर इम्बाइब्ड। देन जॉब अपॉर्चुनिटीज वुड बी क्रिएटेड इन द कंट्री। सबसे बिगेस्ट समस्या यही है देश की, इतनी आबादी है हमारी 130 करोड़, तो नेचुरली जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज होगा लोगों के विकास के द्वारा। एंड इवन इफ बिजनेस एनवायरनमेंट विल फ्लरिश इन द स्टेट विच क्रिएट्स मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली बिजनेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अगर कोई स्टेट में सरकार बिजनेस एनवायरनमेंट को बढ़ावा देती है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, ऑब्वियसली एक कंपनी खुलती है, एक फैक्ट्री खुलती है, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों फॉल आउट्स होते हैं। तो अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस चीज को भी देखता है कि देयर इज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, इंक्रीज हो, ठीक है।
Then social revolution, because of human resource development, the social economic life of the people of the country changes drastically. अब आप सीधा अमेरिकन लाइफस्टाइल से अगर आप कंपेयर करें, लोग डेवलप्ड है, इकोनॉमी डेवलप्ड है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब है, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ उनकी बहुत बेहतर है, मेडिकल फैसिलिटीज है, सोसाइटी में तरह तरह की दूसरी फैसिलिटीज हैं जो कि रोजमर्रा के जीवन में आती हैं, ठीक है. द टेक्नोलॉजीज आर मेड यूजर फ्रेंडली फॉर द सोसाइटी. ओवरऑल look changes, thinking phenomena changes, progressive thoughts are endorsed into the minds of the people. जब देश तरक्की करता है, मानव संसाधन विकास के थ्रू एक सोशल रेवोल्यूशन आता है. इसका बेस्ट एग्जांपल डेवलप कंट्रीज ही हैं. अगर आप उनकी लाइफस्टाइल देखें, उनके रोजमर्रा के जीवन की जो एक्टिविटीज देखें, आप पाएंगे कि दे आर ऑफ द नेक्स्ट लेवल. पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू अटेन दैट लेवल. So social revolution is also one of the aspect which is linked with the development of the people of the country. So unless that is that development for the whole country is not at all possible. और यही एक तरीका है लोगों को डेवलप करके, इकोनॉमी को डेवलप करके जो एक वातावरण बनेगा, उसी के द्वारा सोशल रेवोल्यूशन इज पॉसिबल. क्रिएटिंग अ बिग सोसाइटी, अ डेवलप्ड सोसाइटी इज पॉसिबल. So here we end with this lecture. We will continue in the for the next topic.